السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے ناول رمز جنوں کے ایپیسوڈ 1 آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آریان خان زادہ کی گاڑی حویلی کے کار پورچ میں آ کر رکی تھی۔ زرمش کی سسکیاں حلق میں گھٹتے اسے ساکت کر چکی تھیں۔ آریان خان زادہ نے گاڑی روکتے اسے کاٹدار قہربار نگاہوں سے گھورا، جو سیٹ کی پشت میں سمائے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ اس کا لرزتا بدن دیکھتے آریان خان زادہ کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ گاڑی مت روکنا، یہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ ہے، یہ وحشی درندہ ہے، مجھے اس سے بچا لو۔ وہ اس کے لفظ یاد کرتے مزید دہک رہا تھا۔ اس نازک وجود کی نفرت میں اس کا تن بدن سلگ رہا تھا۔ زرمش سیٹ کی پشت میں سمانے کی کوشش کرتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے کپ کپاتے وجود کو برفیلی نگاہوں سے دیکھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سیدھا کر دیا۔ زرمش کے لبوں سے پرسوز چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائے تھر تھر کانپتے ہوئے اس وحشی درندے کو دیکھ رہی تھی، جو اس پر جھکے ہوئے تھا۔ آریان خان زادہ اس کے نیلے زخم شدہ پھٹے گال کو دیکھتے اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیچھے ہوتے جبڑے بھینچتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ زرمش اپنی سانسیں بحال کرتے آریان خان زادہ کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے دروازے کی طرف کھسکتے ٹیک لگا گئی تھی۔ اب وہ تھر تھر کانپتے ہوئے آریان خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ زرمش اپنی سسکیوں کو گلے میں گھوٹتے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اب کافی دیر ہو گئی تھی، وہ ایسے ہی آنکھیں موندے تھا۔ زرمش نے اپنے لبوں سے ہاتھ ہٹاتے آریان خان زادہ کو دیکھتے گاڑی کے بیک ویو مرر میں دیکھا، جہاں گیٹ کھلا ہوا تھا۔ آریان، زرمش نے کپ کپاتے لبوں سے اسے بے حد مدھم آواز میں پکارا۔ آواز خوف سے نکل ہی نہیں رہی تھی، نہ وہ چاہتی تھی وہ اس کی پکار پر اٹھے۔ دل ہتھیلی پر شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آریان، زرمش نے سسکی لیتے اپنی آواز نکالنے کی کوشش کی، مگر آریان خان زادہ کے خوف سے اس کے لبوں سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ سو چکا ہے۔ وہ گہری نیند سوتا ہے، یہ تو اسے پتا تھا۔ اس دن اس نے اس کے سوتے میں ہی تو اس کا فون اس کی فنگر پرنٹ سے ان لاک کیا تھا۔ زرمش کی نگاہیں ڈیش بورڈ پر پڑی آریان خان زادہ کی پسٹل پر تھیں۔ آریان، زرمش نے اس پر نگاہیں دوڑاتے اپنا کانپتا ہاتھ آریان خان زادہ کے بازو پر رکھا۔ آریان خان زادہ کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ زرمش نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے اپنی گردن کو جکڑے گہرے سانس لیے تھے۔ دوسرے لمحے اس نے ڈیش بورڈ سے پسٹل اٹھاتے آریان خان زادہ پر تان دی تھی۔ وہ اپنے کپ کپاتے دونوں ہاتھوں میں پسٹل جکڑے آریان خان زادہ پر تانے ہوئے تھی۔ اس کا چیمبر کھینچو پہلے، آریان کی آواز پر اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ ہاتھوں سے پسٹل گرا تھا۔ آریان خان زادہ کے لبوں سے فلگ شگاف قہقہ برآمد ہوا تھا۔ زرمش تھر تھر کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جو آنکھیں موندے سیٹ سے ٹیک لگائے قہقہے لگا رہا تھا۔ آریان خان زادہ آنکھیں کھولتے زرمش کے قدموں سے پسٹل اٹھاتے ہوئے زرمش پر جھکے، پسٹل کی نوک اس کی گردن پر گاڑ گیا تھا۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے ہچکی لیتے اسے دیکھا تھا۔ کیا کرنا چاہتی تھی مجھے مار کر؟ آریان خان زادہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے زرمش کی گردن میں پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ زرمش کی گردن سے ٹپکتا پسینہ اس کے وجود سے ڈھلکی شال سے اس کی گہرائیوں میں جذب ہونے لگا۔ گاڑی فل ہیٹڈ تھی۔ آریان خان زادہ کے خوف اور اس کی سانسوں کی تپش سے اس کا پورا وجود پسینے سے تر ہوا تھا۔ آریان خان زادہ کی گہری نگاہیں اس کی ہراساں بھیگی خوفزدہ ہیزل گرے آنکھوں پر تھیں، جن میں اس کا خوف دہشت جیسے پانیوں کی طرح ٹھہر چکا تھا۔ بتاؤ مجھے، گولی سے مار کر کیا کرنا تھا تم نے؟ میری پناہوں سے پھر سے بھاگ کر راستے میں چلتی ہوئی ہر گاڑی کو روک کر مدد مانگنی تھی؟ کسی بھی مرد کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ چلے جانا تھا؟ آریان خان زادہ اشتعال بھار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کا جبڑا بے حد سختی سے دبوچ گیا۔ ان لڑکوں کی ہوس زدہ نگاہیں اس کا شریانوں میں بہتا خون بھڑکا رہی تھیں۔ زرمش درد سے کراہتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آریان خان زادہ اس کی گردن پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھائے اس کے گال کے زخم پر نگاہیں گاڑ گیا۔ اس کی پانچوں انگلیاں پھر سے بے رحمی سے سخت تھیں، پہلے سے کہیں زیادہ بے رحمی سے سخت تھیں۔ اس کے بدن کی کپ کپاہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا وہ اس سے پہلے سے کہیں زیادہ خوف زدہ ہو چکی ہے۔ وہ تو سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ آریان خان زادہ کو ایک پل کے لیے اس پر رحم آیا تھا، دوسرے پل ان لڑکوں کی غلیظ نگاہیں یاد آئی تھیں۔ آریان خان زادہ بے رحمی سے اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے اسے بولا، تم میری پناہوں سے تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔
وعدہ ہے میرا آریان خانزادہ کا، جس دن تمہیں میں نے آزاد کیا اسی دن یہ سانسیں حیدر خان کھینچ لے گا۔ وہ اس پر جھکے اسے نفرت امیز نگاہوں سے دیکھتے گھررایا تھا۔ آنکھیں کھولو! آریان خانزادہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر وہ خوف سے اچھلتے ہوئے تھر تھر کانپتے ہوئے اسی لمحے آنکھیں کھول گئی تھی۔ نہ ان آنکھوں میں اب آنسو آئیں گے، نہ یہ جھپکیں گی۔ وہ برفیلے لہجے میں حکم دیتے، اس کے مزید قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ زرمش اس کے حکم پر اب پسٹل ساکت سی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے خوف سے پلکیں بھی نہیں جھپکا رہی تھی۔ دونوں پلکوں کو جنبش دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ زرمش کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، مگر وہ پلکوں کو جنبش دیے بغیر اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی ہیزل گرے گہری کانچی آنکھوں میں دیکھتے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہیں دوڑائیں۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ وہ پچھلے 10 منٹوں سے بنا پلکیں جھپکائے اس کی نگاہوں میں نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ وہ تو موت سے بھی زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی تھی۔ آنکھوں میں ٹھہرے آنسوؤں تک کو وہ روک چکی تھی۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ گالوں پر نہیں بہے تھے۔ "I will never run away of آریان خانزادہ، بولو ایک ہی سانس میں۔ وہ اس پر جھکے اپنی پسٹل اس کی گردن پر بے رحمی سے گاڑے کسی درندے کی مانند گرایا تھا۔ "I will never run away of آریان خانزادہ، shelter again"۔ زرمش ایک ہی سانس میں اس کے لفظ دہراتے بولی تھی۔ چیخ چیخ کر کہو، میں آریان خانزادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ سرد برفیلے لہجے میں حکم دیتے پسٹل کا چیمبر بڑھاتے زرمش کی کپ کپاتے ہاتھوں میں وہ پسٹل تھما گیا۔ بولو، میں آریان خانزادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ اس کے ساکت ہونے پر دھاڑا تھا۔ میں آریان خانزادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ پسٹل کپ کپاتے ہاتھوں میں پکڑے حلق کے بل چیخی تھی۔ گاڑی کے باہر تک آواز آنی چاہیے، بلکہ ان پہاڑوں کو آج تمہاری آواز چیر کر رکھ دینی چاہیے۔ وہ اسے کاٹ دار نگاہوں سے گھورتے ہوئے گاڑی سے اتر گیا تھا۔ وہ اپنی تمام تر قوت جمع کرتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی۔ آریان خانزادہ نے باہر نکلتے ونڈ اسکرین سے اسے دیکھتے ہاتھ کے اشارے سے مزید اونچا چیخنے کو کہا تھا۔ میں آریان خانزادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے پھر سے پوری قوت سے چیخی تھی۔ پھر چہرہ پھولتی سانسیں دیکھتے آسمان کی طرف دیکھتے قہقہا لگا گیا تھا۔ گاڑی سے باہر آواز نہیں آ سکتی تھی۔ گاڑی ہر طرف سے لاک تھی اور ساؤنڈ پروف تھی، مگر وہ پوری قوت سے ابھی تک چیخ رہی تھی۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر دونوں ہاتھ ٹکائے تھوڑا سا جھکتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جو مسلسل چیختے اس کے لفظ دہرا رہی تھی۔ وہ اس کے کپ کپاتے لبوں کی جنبش کو سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آریان خانزادہ کی نگاہیں اس کے سہمی آنکھوں سے ہوئی اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر تھیں، جو فل اوور لوڈڈ تھی۔ ٹریگر دبانے کی دیر تھی، گولی سیدھا اس کے دل پر لگتی۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے قہقہا لگاتے اپنے بالوں کو پیچھے کیا۔ زرمش کے ہاتھوں میں پسٹل دیکھتے آریان خانزادہ کے قہقہوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں آریان خانزادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ چیختے ہوئے پسٹل پر اپنی جکڑ مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے سلکی نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا، اس کی طرف کا گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ زرمش خوف سے سسکاری بھرتے دوسری طرف کھسکی تھی۔ وہ اس کا بازو سختی سے جکڑتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اس کے پتھر جیسے سینے سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ میری پناہوں سے فرار حاصل کرنی ہے تم نے؟ آریان خانزادہ نے اس کے بازو کو سختی سے جکڑے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دیکھا، سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں۔ زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ آریان خانزادہ اس کے انداز پر قہقہا لگا دیا۔ ٹھنڈی برفیلی ہوائیں اس کے وجود سے ٹکراتی اسے کانپنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ مگر میں چاہتا ہوں تم میری قید سے فرار حاصل کر لو۔ آریان خانزادہ کی بات پر زرمش نے بے یقینی سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں، یہی چاہتا ہوں، تم میری پناہوں سے بھاگ جاؤ۔ آریان خانزادہ نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر زرمش کی گود میں پھینکا۔ زرمش نے اپنی گود میں اس کا موبائل دیکھ کر اسے مزید خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ان لاک ہے، اس کا لاک کھولنے کے لیے تمہیں میرے اوپر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آریان خانزادہ نے ذو معنی انداز میں کہتے اسے بے باکی سی آنکھ ماری۔ زرمش اسٹل سے خوف زدہ نگاہوں سے ناسمجھی سے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ پسٹل فل لوڈڈ ہے، صرف ٹریگر دبانے کی دیر ہے۔ میں لمحوں میں ساکت ہو جاؤں گا، مگر نشانہ تمہیں ایگزیکٹ نشانے پر لینا ہوگا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑے پسٹل اپنے دل پر رکھ گیا تھا۔ زرمش کانپتے ہوئے پسٹل کو بمشکل پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلاؤ گولی، اور اس فون سے حیدر خان کو کال کر کے یہاں سے چلی جاؤ۔ آریان خانزادہ اس کی ہیزل
आंखों में अपनी सब्ज आंखें गाड़े गुर्राया। ज़रमिश के हाथों की कपकपाहट बढ़ी थी। वो गहरे सांस लेते, पसीने से तर आर्यन खानज़ादा को देखते सरनफी में हिलाई जा रही थी। साथ ही ज़रमिश ने कांपते हाथों से ट्रैकर पर उंगली मजबूत की। वो इसकी उंगली ट्रैकर पर जमी देखते ऊंचा फ्लग शिगाफ खौफनाक कहका लगा गया। ज़रमिश ने उसकी खौफनाक कहके पर सहमते हुए उसे देखा। खेल इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो, वो इसकी हिरनी जैसी खौफजदा आंखों में देखते पुरअसरारियत से मुस्कुराया था। इसकी पुरअसरार मुस्कुराहट से 2 गोलियां मारने का मौका दूंगा। अगर मैं जिंदा बच गया तो फिर जो करूंगा वो तुम्हारी सोच है मिस खान। वो इसकी आंखों में देखते ज़ोमाइनी अंदाज में आंख मार गया। क्या करोगे? ज़रमिश ने टूटे लफ्ज़ों से बोलते खौफ से हिचकी लेते इस्तफसार किया था। ये गाल मेरे हो जाएंगे फिर। इनको थप्पड़ों से निशान दूं या फिर दांतों से? तुम्हारे पास हक नहीं होगा दर्द से सिसकने का भी। आर्यन की बात पर ज़रमिश के हाथों से पिस्टल लरजते उसके कदमों में जा गिरा था। वो दोनों हाथ अपने गाल पर जमा गई थी। वो इसके एक्ट पर इसके मासूम चेहरे को देखते इस्तहज़ाइया मुस्कुराया था। ये तो वो दिल से मान चुका था। इससे बढ़कर मासूम शायद ही इस रोए ज़मीन पर कोई दिखता हो। अरे खान की बेटी हो, वो भी बगैरत हाकम खान की बेटी। इतनी जल्दी घबरा गई तुम तो। हो सकता है तुम्हारे हाथों से चली गोली पर मैं एक लम्हे में साकत हो जाऊं, जैसे मिडनाइट हुआ था। आर्यन खानज़ादा ने सर्द निगाहों से देखते आई विंक की थी। अगर तो तुम ना मरे तो फिर मेरे गाल तुम्हारे हो जाएंगे। मैं तो तुम्हारा थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बार और मारोगे तो मर जाऊंगी। उसने कपकपाते लहजे में बोलते उसकी सैंडल जकड़े अपने चकराते वजूद को संभाला था। सर्दी की शिद्दत से वो बुरी तरह कांप रही थी। आर्यन खानज़ादा उसकी बात पर उसके निशान ज़दा गाल पर निगाहें गाड़े इसी लम्हे नजरें चुरा गया था। दूसरे लम्हे उसने झुकते हुए पिस्टल ज़रमिश के कदमों से उठाते हुए ज़रमिश के हाथों में सख्ती से थमाई। खेल और भी आसान करता हूँ। आर्यन खानज़ादा ने उसकी आंखों में देखते मुस्कुराया था। ज़रमिश की आंखों का गुलाबीपन बढ़ता जा रहा था। गाड़ी की चाबी अंदर ही है। मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी भी नहीं। मैं बच गया भी तो ज़ख्मी तो हो ही जाऊंगा। तुम मुझे ज़ख्मी करके गाड़ी के अंदर ही रहना और हैदर खान को कॉल कर देना। अगर आधे घंटे में वो तुम तक पहुंच गया तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा मैं। वो पुरअसरारियत से बोलता ज़रमिश के असाब सख्त कर गया था। दरवाजे लॉक कर दो और मेरे सीने पर शीशे के पार से ही गोलियां चला दो। जान से मार ना सकी तो ज़ख्मी तो कर सकोगी ना। मुझे ज़ख्मी करके लॉक खोलते खुले गेट से भाग जाना। ऑप्शन ही ऑप्शन तुम्हारे पास। आर्यन खानज़ादा ने सपाट लहजे में उसे कहा था। मगर तुम तो ज़ख्मी होकर भी मेरे पीछे आ गए तो? ज़रमिश ने कांपते लबों से कहते हिचकिची लेते इस्तफसार किया। ये तो है। मैं मर भी रहा हूँ तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। आर्यन खानज़ादा उसके कपकपाते लबों पर निगाहें जमाए सर्द लहजे में बोलते उसके बालों पर अपनी जकड़ मजबूत कर गया। जब तुम्हें पता है तो क्यों भागी मेरी पनाहों से? क्यों मांगी इन लड़कों से मदद? इनकी निगाहों में टपकती हवस तुम्हें नजर आई मिस खान? तो तुम्हारी दहशत के आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आता। इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की पनाहों में नहीं रहना मुझे। शायद इन लड़कों की हवस गवारा हो सकती थी मगर तुम्हारे साथ रहना नहीं। ज़रमिश रोते हुए यकदम अपने सर को जकड़ते सीट से टेक लगा गई। वो इसकी बात पर पागल होते हुए इसके बालों को सख्ती से जकड़े इसे अपने मुकाबल करते इसके ज़ख्मी गाल पर अपने अंगूठे का दबाव सख्ती से बढ़ा गया। ज़रमिश दर्द से कराई थी। तुम्हारे पास मौका है, मुझे मारकर यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे गालों के ऊपर मैं खाल नहीं रहने दूंगा। वो सुलगते लहजे में गिराते हुए इसे एक झटके से छोड़ते गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर गया था। ज़रमिश ने गहरे सांस लेते अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल को देखते आर्यन खानज़ादा को देखा, जो सामने बोनट पर हाथ जमाते थोड़ा सा झुकते हुए खड़े अपने सीने पर हाथ दिल के मुकाम पर हाथ रखे मुस्कुरा रहा था। ज़रमिश ने गहरे सांस लेते अपनी पेशानी से पसीने के कतरे चुनते गाड़ी को अंदर से लॉक किया। आर्यन इसकी तरफ देखते कहका लगा गया। ज़रमिश इसके कहके पर रोते हुए विंड स्क्रीन पर निगाहें गाड़े अपनी पिस्टल इस वहशी दरिंदे पर तान गई। आर्यन खानज़ादा ने अब मुस्कुराते हुए इसे आंख विंक की थी। ज़रमिश बुरी तरह कांपते हुए इसे देखते ट्रैकर पर अपनी उंगली रखे हुए थी। अगर वो इसे ना मार सकी, इससे आगे का सोचते उसकी जान लबों पर सज रही थी। ज़रमिश ने इस वहशी दरिंदे को देखते खौफ से हिचकी लेते आंखें मीचते ट्रैकर पर उंगली मजबूत करते इसे पूरी कुव्वत से दबाया था। फायर निकलता विंड स्क्रीन से पार हुआ था। फायर की आवाज़ के साथ ज़रमिश के लबों से दिल क्रैश चीख बरामद हुई। वो अब आंखें नीचे थर थर काँप रही थी। पिस्टल इसके हाथों में लर्ज रही थी। वो मर गया था या ज़ख्मी वो नहीं जानती थी, मगर वो खुद खौफ से मरने वाली हो गई थी। ज़रमिश ने गहरी सांस लेते आंखें खोलते देखा।
आर्यन खानज़ादा को देखते वो फूट फूट कर रोती थी। वो अपनी जगह पर वैसे ही मजबूती से खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो गलत निशाना ले चुकी थी। विंड स्क्रीन का शीशा तड़क चुका था। आर्यन खानज़ादा ने आंख मारते विंड स्क्रीन के होल की तरफ इशारा किया। वो साइड पर गोली चला चुकी थी। वो सामने गोली नहीं चला सकी थी। मिस खान, बहुत बड़ा मौका तुम गंवा चुकी हो। अब सिर्फ एक गोली। और फिर वो कहका लगाकर हंसा था। जरमिश ने रोते हुए पिस्टल के ट्रैगर पर उंगली मजबूत की। वो बुरी तरह हचकोले भरते इसे देख रही थी। वो सर नफी में हिलाते हुए चीखते हुए पूरी कुव्वत से पिस्टल विंड स्क्रीन पर मार गई थी। आर्यन खानज़ादा के कहकों की गूंज में इजाफा हो रहा था। जरमिश इसे कहके लगाते देखते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े चीख रही थी। वो इसकी चीखें सुनते कहके लगा रहा था, जो विंड स्क्रीन के तड़कते शीशे से आर्यन खानज़ादा को बखूबी सुनाई दे रही थी। यकदम वो खामोश होता इस पर सर्द निगाहें गाड़ गया, मगर जरमिश मजीद शिद्दत से चीखने लगी थी। आर्यन खानज़ादा ने उसे सर्द निगाहों से घूरते हुए उसे लॉक खोलने का इशारा किया। जरमिश ने उसकी आंख के एक इशारे पर उसी लम्हे हिचकी लेते लॉक खोला था। वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। वो दूसरे लम्हे सरनफी में हिलाते ड्राइविंग सीट की तरफ तेज़ी से बढ़ी थी। वो कांपते हाथों से इग्निशन में चाबी घुमाते गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी। आर्यन खानज़ादा के भारी कदम रुके थे। वो शररबार निगाहों से इस नाजुक मगर बेहद खूबसूरत वजूद को देख रहा था, जो अपनी हिम्मत से आज इसे हैरान कर रही थी। वो फिर से इसकी पनाहों से भागने की कोशिश कर रही थी। वो नाजुक ज़रूर थी, मगर काफ़ी जीदार थी, यह तो उसे अंदाज़ा हो गया था। जरमिश ने गाड़ी रिवर्स पर डालते, एक्सीलेटर पर पाँव रखते, गाड़ी घुमाते गेट की तरफ तेज़ी से टान लिया। उसने एक दो मरतबा अपनी दोस्त के साथ 10 मिनट की ड्राइविंग की थी। उसे प्रॉपर गाड़ी चलाना नहीं आती थी, मगर गाड़ी की तमाम बेसिक चीज़ें उसे पता थी। वो गेम हार चुकी थी। आर्यन खानज़ादा उसके गालों का अब क्या हाल करने वाला था, ये सोचकर ही वो मरने वाली हो रही थी। इस वहशी दरिंदे के थप्पड़ों से ज़्यादा किसी चीज़ का खौफ नहीं था। वो मज़ीद इसके थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर वो इसके गाल पर दांत गाड़ता तो वो कैसे इस वहशी दरिंदे की ज़िंदगी बर्दाश्त कर सकती थी। गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तारी से पीछे की तरफ बढ़ते गेट से निकलती उछली थी। गाड़ी का कंट्रोल जरमिश के हाथों से निकल गया था। वो चीखते हुए स्टीयरिंग छोड़ते आंखों पर हाथ रख गई थी। आर्यन खानज़ादा, जो लब बिंचे खामोशी से इसे देख रहा था, गाड़ी उछलते देखते बर्क रफ्तारी से भागते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। जरमिश ने उसे पीछे आते देखते फिर से गाड़ी स्टार्ट करते उसे सामने सड़क पर डाली। उसकी गाड़ी की इतनी स्पीड नहीं थी जितनी तेज़ी से वो पीछे भागते हुए आ रहा था। जरमिश उसे बैक व्यू मिरर से देखते फिर चीखते हुए रो दी थी। वो एक्सीलेटर पर पाँव रखे गाड़ी भगाई जा रही थी। वो भी तेज़ी से भागते उसके पीछे आ रहा था, सिर्फ चंद कदमों की डिस्टेंस पर ही था। जरमिश उस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट को देखते सर नफ़ी में हिलाते गाड़ी की स्पीड बढ़ा रही थी। बैक व्यू मिरर से आर्यन खानज़ादा का पसीने से तर वजूद उसे नज़र आ रहा था। उसके सिक्स पैक उसके बीस पर पसीना बहा रहे थे। वो दांत पर दांत जमाए इसकी गाड़ी के पीछे भाग रहा था। जरमिश सामने नहीं बल्कि बैक व्यू मिरर से इस जंगली इंसान को देख रही थी, जो सच में जंगली जानवर था। सामने ही सड़क पर बारिश की वजह से खड्डा पड़ा था। गाड़ी खड्डे पर लगती बुरी तरह उछली थी। वो चीखते हुए स्टीयरिंग छोड़ चुकी थी। गाड़ी फिसलती जा रही थी। सामने ही दूसरी तरफ सड़क टूट चुकी थी। उसके दूसरी तरफ नीचे की तरफ बहता दरिया था, जिसमें शायद तुगयानी आई हुई थी। वो उबल उबल कर आ रहा था। गाड़ी इसी तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी को सड़क से नज़र आते नीचे बहते दरिया की तरफ बढ़ते देखते वो दांत पर दांत जमाए भागा था। गाड़ी की तरफ बढ़ते उसकी दूसरी साइड का दरवाज़ा खोलते हुए गाड़ी में बैठा। आर्यन को अपनी साथ वाली सीट पर बैठता देखते जरमिश की चीखों में इजाफा हुआ था। स्टीयरिंग पर हाथ जमाते उसे कंट्रोल करते हुए हैंड ब्रेक खींची थी। वो इस दौरान दोनों एक दूसरे पर अपनी निगाहें गाड़े हुए थे। आर्यन खानज़ादा की खून उतरी इसकी सहमी हैज़ल ग्रे आँखों में गड़ी थी। वो भी हैज़ल ग्रे खौफजदा आँखों से इसकी सब सुर्ख आँखों में देख रही थी। गाड़ी तेज़ी से सड़क के दूसरी जानब बढ़ रही थी। गाड़ी तेज़ी से फिसलती हुई सड़क के नीचे की तरफ उसी लम्हे दरिया में गिरी थी। जरमिश चीखते हुए आंखों पर हाथ रख गई थी। आर्यन खानज़ादा उसे कमर से जकड़े उसी लम्हे एक झटके से अपनी तरफ खींच गया था। गाड़ी बहुत ऊंचाई से दरिया में गिर रही थी। जरमिश की आंखों में खौफ बढ़ता जा रहा था। वो इसके साथ लगे इसकी आंखों को देख रही थी, जो बहुत गहरी निगाहों से इसे देखते इसकी कमर को जकड़े हुए था। वह इस पर निगाहें गाड़े ही अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते अपनी तरफ से निकलते नीचे दरिया में जंप मार गया था।
वो लोग गहरे पानी की नज़र हो रहे थे। ज़रमिश खौफ से चीखते हुए आर्यन खानज़ादा के साथ लिपट गई थी। वो इसे कमर से सख्ती से जकड़े खुद के साथ मज़ीद शिद्दत से लिपटा गया था। वो दोनों इस बहते गहरे दरिया में गिरे थे। वो मज़ीद शिद्दत से इसके साथ लिपटी थी। ज़रमिश ने खौफ से आर्यन खानज़ादा को देखा। दरिया की मौजें इन दोनों को दूर तक बहाते हुए लेकर जा रही थी। आर्यन खानज़ादा बादलों की ओट में झलक दिखाते चाँद की किरणों की रोशनी में इसकी सहमी हैज़लगरी आंखों में आंखें गाड़े हुए था। यकदम उसके एक हाथ की उंगलियां इसके गाल को छू गईं। ज़रमिश उसके लम्स चीखते हुए आंखें बंद कर गई थी। आर्यन खानज़ादा इसके गाल को छूते हुए इस पर गहरी निगाहें जमाए हुए था। वो लोग पानी में बहते जा रहे थे। ज़रमिश की शाल इसके वजूद से अलहदा होते इस बहते पानी की नज़र हुई थी। वो एक हाथ से ज़रमिश की कमर को जकड़े दूसरे हाथ से इस बहते पानी में बहती इसकी शाल को जकड़ गया था। वो शाल अपनी तरफ खींचते वो इसी लम्हे इसके वजूद पर उड़ा गया था। ज़रमिश इसी के हिसार में कांपते हुए आंखें मूंदे हुए थी। दूसरे लम्हे वो ठंडे पानी और आर्यन खानज़ादा के खौफ की ताब न लाते हुए इसकी बाहों में झूल गई थी। वो इस पर गहरी निगाहें जमाए इसके नाजुक वजूद को संभालते हुए तैरते हुए वो दरिया अबूर करने लगा। गहरी सब्ज आंखें इस नाजुक वजूद पर ही गड़ी हुई थीं। वो इसके नाजुक ठंडे वजूद को बाहों में उठाए हवेली में दाखिल होते जल्दी से इसके कमरे की तरफ बढ़ा। इसे कमरे के बेड पर नरमी से लिटाते हुए इसके वजूद से शाल अलहदा करते इस पर जल्दी से कंबल दिया। कमरे का इलेक्ट्रिक हीटर उसने फुल स्पीड पर चलाया था। कमरे के वस्त में जदीद आतिशदान भी उसने जला दिया। कमरा लौहों में गर्म हुआ था। आर्यन खानज़ादा की सरसब्ज आंखें इसके नीले होंठों पर जमी थीं। अगर इसके बदन से गीले कपड़े ना उतरते इसे गर्माइश किसी सूरत नहीं मिल सकती थी। आर्यन खानज़ादा जल्दी से कमरे की अलमारी की तरफ बढ़ते एक ड्रेस निकालते उसकी तरफ बढ़ा था। कंबल उसके वजूद से उतारते हुए वह इसके जिस्म की हशर समानियों को देखते इसी लम्हे कंबल इसके वजूद पर डाल गया था। आर्यन खानज़ादा ने जबड़े भींचते हुए गहरा सांस भरा था। मिस खान, आर्यन खानज़ादा ने उसका गाल थपथपाया था। वो बेहिस हरकत पड़ी थी। मिस खान, आर्यन खानज़ादा ने उसका जख्मी गाल बेरहमी से थपथपाया। यह ज़रमिश बेहोशी के आलम में भी दर्द सिसकी थी। इसने बहुत बेरहमी से थप्पड़ मारा था। वो जानता था। दूसरे लम्हे उसने इसके जख्म शुदा गाल पर फिर से बेदर्दी से अपना हाथ थपथपाया था। उठो मिस खान, वरना इस गाल को मसख करके रख दूंगा। वो इसके गाल को बेदर्दी से थपथपाते चीखा था। ज़रमिश के लबों से बेहोशी के आलम में भी सिसकियाँ जारी थी। उठो मिस खान, वरना मेरी दरिंदगी से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। जान से मार डालूंगा अगर तुमने सांसें खोईं। आर्यन खानज़ादा मज़ीद शिद्दत से इसके गाल को थपथपाते हुए इसे कंधों से जकड़े घुराया था। उसकी गुराहट पर ज़रमिश के बेजान वजूद में हल्की सी हलचल हुई थी। कमरा बेहद गर्म था। सिर्फ इसके जिस्म पर गीले कपड़ों की वजह से इसका जिस्म सर्द था, मगर कमरे की तपिश से इसका जिस्म थोड़ा थोड़ा हरारत में आ रहा था। मगर चेहरे पर निलाहट सी थी। आंखें खोलो, तुम्हारी मौत ऐसी नहीं लिखी। तुम्हारी मौत सिर्फ तुम्हारे अपनों के हाथों लिखी है। आर्यन उसके नीले होंठ देखते दौड़ा था। उसकी दाढ़ पर कमरे के दर दीवार लड़ उठे थे, मगर उसका नाजुक वजूद वैसे ही साकत था। आर्यन खानज़ादा जल्दी से ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ते वहाँ से ड्रायर उठाते ज़रमिश की तरफ बढ़ा। ड्रायर को ऑन करते उसने ज़रमिश के गीले कपड़ों पर चलाया। अब वो फुल स्पीड में ड्रायर चलाए इसके कपड़ों को खुश्क कर रहा था। वो किसी तरह इसके बदन को हरारत देने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी निगाहें इसकी क़यामत की इस बदन से चुराते इसके बदन को हरारत दे रहा था। वो इसके जिस्म पर अपनी निगाहें ज़्यादा देर नहीं गाड़ सकता था। औरत इतनी खूबसूरत होती है, इसे इससे पहले अंदाज़ा ना था। यकदम गलती से ड्रायर उसकी गर्दन को छू गया था। ज़रमिश ने जलन से भरते सिसकी ली थी। आर्यन खानज़ादा ने उसकी दूधिया गर्दन पर जलने का दाग देखते हुए ड्रायर उठाकर ज़मीन पर फेंका था। ज़रमिश उसकी चीख पर आंखें खोलते चीखी थी। आर्यन खानज़ादा को कूद के करीब बैठे देखकर वो खौफ से उठते बेड क्रॉन में तेज़ी से समाई थी। आर्यन खानज़ादा ने उसके कपकपाते वजूद को देखते मुंह पर हाथ फेरा। वो कांपते हुए इसे गुलाबी खौफज़दा आंखों से देख रही थी। गाल नीला फटा हुआ, गीले बाल आरज़ के साथ चिपके हुए थे। हैज़लगरी आंखें मतूरम गुलाबी थीं। चेहरे पर गुलाबियों की जगह नीलाहट थी। ये कपड़े पड़े हैं, इन्हें जल्दी से पहनो। आर्यन खानज़ादा ने उसकी सहमी आंखों में बगौर देखते उसे सर्द लहजे में हुक्म दिया। ज़रमिश ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया था। 1 मिनट में तुम ये कपड़े बदलोगी, सिर्फ 1 मिनट में। इससे पहले तुम बेहोश नहीं होने चाहिए हो, वरना फिर मैं तुम्हें इस तरीके से बेहोश करूँगा सारी उम्र होश में नहीं आओगी। वो इसके कांपते वजूद पर निगाहें गाड़े हुक्मिया लहजे में घुर्राया। ज़रमिश ने उसकी तरफ देखते जल्दी से इस बात में सर हिलाया था। पहनो इन कपड़ों को। आर्यन खानज़ादा सर लहजे में बोलते दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा लॉक नहीं करूँगी।
ऐसे ही चेंज करोगे। 5 मिनट बाद मैं बिना लॉक किए कमरे में आऊँगा। आर्यन रुख पलटे बगैर हुक्म देते कमरे से निकल गया था। जरमिश ने अपने चकराते वजूद को जल्दी से संभालते अपने तन से कपड़े उसी लम्हे उतारे थे। उसने जल्दी से बेड पर रखा वो जोड़ा जेब तन किया। इसे 5 मिनट में ही लगे थे कपड़े चेंज करने में। वो जानती थी वो 5 मिनट बाद कमरे में होगा। उसका अंदाज़ा ठीक था। वो 5 मिनट बाद कमरे में था। कमरे में दाखिल होता उसकी तरफ बढ़ा। वो स्याह कलर की फ्रॉक में बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए हुए आंखें मूंदे हुए थी। फ्रॉक देखते रशना खान को घबराहट नमा दबी आवाज़ में पुकारते मुठियाँ भींच गया था। रशना खान की अब खैर नहीं थी। उसके हाथों से जरमिश के बदन ये फितना फ्रॉक देखते उसे पता चला था रशना खान चादर के नीचे ऐसी ड्रेसिंग करती है। आर्यन खानजादा ने उसकी तरफ बढ़ते बैठकर शीशे की बोतल जरमिश की तरफ बढ़ाई। कि क्या है ये? जरमिश ने आंखें खोलते उससे पूछा। ये जहर है। यकीनन मेरी गुनाहों से छुटकारा पाने के लिए तुम ये जहर खुशी खुशी पी लोगी, जैसे कुछ देर पहले खुदकुशी की कोशिश की थी। वो इसके नज़दीक होते इसके दोनों अतराफ में हाथ रखते इसके खूबसूरत नकुश पर सुलगती सांसें छोड़ गया था। खुदकुशी? जरमिश ने उसका अदा किया लफ्ज़ बेआवाज़ दोहराया था। हाँ, खुदकुशी। वो इसके लबों की जंबिश देखते लफ्ज़ खुदकुशी पर जोर देते बोला था। गाड़ी लेकर निकल गई तुम्हारी अनाड़ी ड्राइविंग से अंदाज़ा हुआ मुझे तुम्हें खुदकुशी करने के सारे तरीके पता है। आर्यन खानज़ादा उसके नीले गाल पर गहरी निगाहें गाड़े इस्तेज़ाइया लहजे में बोला था। जरमिश ग्राउंड में समाते उसे देखे जा रही थी। इसकी सुलगती सांसों की तपिश से वो ग्राउंड में समाती जा रही थी। वो उसके बेहद करीब था। किसी ने सिखाई ये ड्राइविंग? आर्यन खानज़ादा ने सर्द लहजे में इस्तफसार किया। कॉलेज की फ्रेंड्स ने सिखाई थी। जरमिश दूसरी तरफ खिसकी थी। इसके बाजू को देखते वो सिसकी ले गई। वो इसके गिर्द अपने दोनों हाथ जमाए से महसूर किए हुए था। पिस्टल चलानी आती है ना तुम्हें ना गाड़ी। अगर दोनों में से एक भी चलानी आती मेरी पनाहों से तुम आज निकल ही जाती। वो इसकी सहमी आंखों में देखते इस्तेज़ाइया हंसा था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा गाड़ी चलाना भी और बंदूक चलाना भी। आर्यन खानज़ादा ने इसे देखते आंख भींकी थी। जरमिश सांसें रोके से देखे जा रही थी। वो इसकी इतनी नज़दीकी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पकड़ो इस जहर की शीशी को, गटागट पी लो, वरना मेरे पास खुदकुशी के जो तरीके हैं वो तुम्हारी नाजुक जान बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आर्यन खानज़ादा ने धमकी अमेज़ लहजे में घुराते हुए शीशी इसकी जानब बढ़ाई। जरमिश उसके हाथों से वो छोटी सी बोतल पकड़े उसी लम्हे अपने लबों से लगाते गटागट चढ़ा गई। वो इसे गहरी निगाहों से देखते मुस्कुरा रहा था। इतना डरती हो मुझसे कि एक लम्हे में जहर पी लिया? आर्यन खानज़ादा ने उसके गाल पर निगाहें गाड़े तंज़िया लहजे में सवाल किया। मुझे हर सूरत तुम्हारी पनाहों से जाना है, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो। अब तो मैंने ये जहर की शीशी पी ली है। अब मुझे कोई खौफ डर नहीं। मरने से पहले बता दूं, मैं जितना तुमसे डरती हूँ उससे कहीं ज़्यादा नफरत करती हूँ। वो सिसकते हुए इसके सीने पर अपने दोनों हाथ जमा गई थी। नफरत से ज़्यादा तुम आर्यन खानज़ादा से डरती हो। तुम्हारा कामता बदन और लरजते होंठ कह रहे हैं। तुमने ये लफ्ज़ अदा करते हुए बहुत हिम्मत की है। वो इस्तेज़ाइया बोलते खौफनाक कहका लगा गया था। जरमिश इसके कहके पर खौफ से हिचकी ले गई थी। बोलो, तुम मौत से भी ज़्यादा आर्यन खानज़ादा से डरती हो। वो इस पर झुके एक लफ्ज़ से बातें कराया था। मैं मौत से ज़्यादा आर्यन खानज़ादा से डरती हूँ। जरमिश ने हिचकी लेते जल्दी से ऐसा ही सांस में कहा था। अब लेट कर आंखें बंद किए या दोहराती जाओ, जब तक तुम मौत की गोश में नहीं चली जाती। तुम ये लफ्ज़ दोहराती जाओगी। वो इसे कंधों से जकड़े तकिए पर नरमी से लटा गया था। उसने बेहद नरमी से इस पर कंबल दिया। मैं मौत से ज़्यादा आर्यन खानज़ादा से डरती हूँ। वो आंखें मूंदे कपकपाते लबों से बोली थी। आर्यन खानज़ादा बेड से उठते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। बोलती रहो। जरमिश की खामोशी पर वो ऊंची आवाज़ में गुर्राया था। मैं मौत से ज़्यादा आर्यन खानज़ादा से डरती हूँ। मैं मौत से ज़्यादा आर्यन खानज़ादा से डरती हूँ। वो आंखें मूंदे बनार की बोलती जा रही थी। मैं मौत से ज़्यादा आर्यन खानज़ादा से डरती हूँ। वो मुश्किल ये लफ्ज़ दोहरा रही थी। उसका दिमाग तरीकी में जा रहा था। शायद वो मर रही थी। वो टूटे लफ्ज़ों से बोलते हुए साकत हो चुकी थी। आर्यन खानज़ादा मुस्कुराते हुए लाइट्स ऑफ करते बाहर की जानिब बढ़ गया था। हैदर खान अपने ग्रैंड होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए अपनी सांसों की तपिश पर वो मुश्किल काबू पाए हुए था। हैदर खान का बस नहीं चल रहा था आर्यन खानज़ादा को इसकी हवेली समेत आग लगा दे। वो टेबल पर दोनों हाथ जमाए झुके हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी सुर्ख आंखें गाड़े इस दिन की फुटेज चेक कर रहा था। एकदम उसकी आंखें बेयकीन हुई थी। ब्लू जीन्स पर स्याह हुडी पहने वो आर्यन खानज़ादा ही था। अपने दोस्तों के हमरा वो होटल में इसी तारीख रात के इस पहर दाखिल हुआ था।
اس کے نمبر پر جو کال آئی اس کی لوکیشن بھی اسی کے ہوٹل کے قریب ہی ٹریس ہوئی تھی، یعنی اس رات اس نے گرینڈ ہوٹل کے پاس ہی سے کال کی تھی۔ حیدر خان لیپ ٹاپ کو ایک ہی جست میں ٹیبل سے نیچے پھینکتے چیخا تھا، یہ نہیں ہو سکتا آریان خان زادہ، یہ نہیں ہو سکتا آریان خان زادہ، میری بہن تمہارے ہی پاس ہے، میں زمین کھود کر اسے نکال لوں گا، مگر وعدہ ہے میرا، اسی زمین میں 100 گز کا کھڈا کھودتے تمہیں غرق کر دوں گا۔ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ حیدر خان نے اپنی قمیض کی پاکٹ سے فون نکالتے ہوئے کال ملاتے کان سے لگایا۔ آریان خان زادہ کے بارے میں ایک ایک انفارمیشن اکٹھا کرو، اس کی زندگی کا ہر راز مجھے جاننا ہے۔ حیدر فون پر چیختے ہوئے ٹیبل پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ اوکے تو گائز، آپ کو یہ ایپیسوڈ ہماری کیسی لگی؟ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوگی، تو کائنڈلی آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ ہم سیکنڈ ایپیسوڈ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو